questions should be different from the questions given at the end of the case. Case के end पे जो question दिए, they should be different from what you are giving in teaching notes. Number one. Number two, जो teaching note में आप question दे रहे हैं, उनका brief solution भी दोगे. केस के एंड पे जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन आपको नहीं देना, वो केस डिस्कशन और जो केस एनालाइज करेगा वो फाइंड करेगा. लेकिन टीचिंग नोट में जो आप क्वेश्चन दे रहे हो उसका ब्रीफ सॉल्यूशन चाहिए, बिकॉज टीचिंग नोट इज मेंट फॉर द टीचर, फॉर द फैसिलिटेटर. सो इट इज ए काइंड ऑफ फैसिलिटेशन फॉर हिम, सो दैट काइंड ऑफ गाइडलाइन फॉर हिम, जिसको हम बोलते हैं ना इंस्ट्रक्टर्स मैनुअल. It is just a brief for the teacher so that he can decide and he can understand where to use this case and how to use this case. Sir, वो questions के साथ में answer देना है. जो teaching notes में questions दे रहे उसी का answer उसी के साथ में देना. Questions should be answered briefly. Say a paragraph or so should be given answer to each question given in the teaching note. And these questions will be different from those questions which are given at the end of the case. Okay. Same नहीं होनी चाहिए. Right? Now you have to prepare the teaching. ये ज्योति को बोलो या ऑफ रखे, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है. आपका सुनाई नहीं दे रहा क्या बोल रहे हो? Okay, so this is how you should write the case and how you should prepare the teaching note. Teaching note अगर नहीं होगा, then this case will not be registered with the ECCH because they accept cases only with teaching note. और ये जो format है ये भी ECCH का ही है. You have to follow this format. You cannot have your own format. Okay. Now, keeping in view जो आपने अभी तक किया है 2 दिन में, आज तीसरा दिन है, उसके ध्यान में रखते हुए if you have any specific questions you can ask me. अब रहा टाइटल की बात. टाइटल has not to be like breaking news. वो जैसे किले का रहस्य जैसा टाइटल नहीं होगा या सन्नाटे की चीख नहीं होगा. It has to be more matter of fact title. और टाइटल लंबा भी नहीं होगा. It should not be like a research paper. जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने बोला कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी, ये तो पेपर का टाइटल हो सकता है, लेकिन केस का नहीं. सो केस हैज टू बी शॉर्ट टाइटल देने की कोशिश करनी चाहिए, बट वो ऐसा हो जो इंडिकेटिव हो. फॉर एग्जाम्पल वी से देयर इज अ केस कॉल्ड आवर इंजीनियर्स आर जस्ट नॉट मोटिवेटेड. आवर इंजीनियर्स आर जस्ट नॉट मोटिवेटेड. इंडिकेटिव समझ में आ रहा है कि भाई इट हैज समथिंग टू डू विद द मोटिवेशन ऑफ द इंजीनियर्स. Or there is a case called brusque or efficient. Brusque means blunt. Brusque or efficient. So एक indicative है, idea हो जाता है. It has something to do with communication, or it has something to do with conflict management. Or there is a case. Tip says no way. Tip says no way. Again, it is indicative that there is some conflict in the case. There is case is on conflict. So the case title should be indicative, not very long, not like a research article. This is about the title. So challenges and opportunities से आपने पूछा नहीं रखेंगे. पेपर हो उसमें चाहिएगा, केस में नहीं. The case में it is to be more a matter of fact. You have to see the contents of your case and the issue or the problem that you are trying to highlight. उसके आधार पे केस का टाइटल. Then authors की बात है. Authors का भी जो order है, that is to be group mutually, all group members mutually. Or there are various ways of doing it. One way is that you can do it for seniority. Another way is that you can do it as per the level of contribution made by the group members. Another way is by giving it, putting it in alphabetical order of the author. अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो लॉटरी सिस्टम करो, यानी कि चिट्स बनाओ इक्वल टू द नंबर ऑफ मेंबर्स में नंबर रखो मेंबर्स का, और तीसरे व्यक्ति से जो कि ग्रुप का मेंबर ना हो उससे उठा ले एक एक. जिस ऑर्डर में उठेंगे उसी ऑर्डर में आप नाम लिखेंगे. नॉर्मली वो सिचुएशन आती नहीं है. नॉर्मली म्यूचुअली इट इज डिसाइडेड by the group members depending upon the contribution, depending upon the extent of
guidance and all that, facilitation, how far each member is facilitating. तो ये तो टाइटल हो गया. देन केस क्या, ऑथर्स का नाम आर्टिकल की तरह नहीं आएगा. जैसे टाइटल में, आर्टिकल में क्या होता है, टाइटल के नीचे ऑथर्स का नाम लिखते हैं. केस में वैसे नहीं आएगा. केस में आपको यू हैव टू गिव इन द फुटनोट. फुटनोट में आएगा. फॉर एग्जांपल, दिस केस वाज डेवलप्ड बाय, से नाम लिखेंगे, से एक्स, within bracket name of the organization, then comma y, within brackets name of the organization, comma, and z, within brackets name of the organization. During the case writing workshop organized by Shri Vaishnav Vidyapith Vishwavidyalaya from say December 5 to 9. This is the way to write in the footnote. तो पर अगर मान लीजिए दो ऑथर सेम ऑर्गेनाइजेशन से हैं, दो बार ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना नहीं चाहिए. फॉर एग्जांपल, एक्स एंड वाई आर द सेम ऑर्गेनाइजेशन, सो यू विल राइट एक्स कॉमा वाई, देन ब्रैकेट में आप उनका ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखेंगे. नॉर्मली हम डॉक्टर वगैरह ऑथर्स का नहीं लिखते हैं केस ऑथर्स में, सिंपली नाम दे सकते हैं. तो दिस इज हाउ टू राइट द नेम ऑफ द ऑथर्स. So now if you have any query, you can ask me. So the first thing is that the issue has not yet been resolved. The issue is regarding the hiring. तो ये हमारा सर केस तो इशू बेस्ड ही है. अगर उस हिसाब से हम देखें तो issue, you can close the case with the issue. So this becomes an issue or problem based case. जी. For example, there is a case called Tip says no way. इसमें क्या होता है, इसमें there is a conflict between two persons, and then the case ends with the surmise, wonder that what to do. One person is not able to resolve the conflict with the other person, and it is left there. So that becomes a issue-based case. Historical case में क्या होता है, जैसे there is another case called Gopal Cotton Mills. उसमें it's a cotton mill जिसमें managing director goes to China in an international trade fair, and he finds that there are many companies which are participating, and what is important in that international trade is quality. So quality of his product is not that good, but he wants to go to the international market. Therefore, he decides to shift from handloom to the electric loom. And he had 4 sheds in his company, in his factory. Now, how to do it? How to start it? वहाँ अगर एक साथ करूँगा, अगर strike कर दिए workers तो production आ जाएगी. So he decided that let me do it by sheds. Shed wise करूँ. So he chooses one of the 4 sheds and introduces electric looms there. And then ultimately, finally क्या होता है, वो resistance होती है, and the person who was supervisor was not able to handle it because he was he had very good relations with all those workers. In fact, most of them were from his community, from his village. But then after electric loom, he was not able to spend much time with the workers. With the result, and not only that, he was not able to even guide them because he was not well versed with the electric loom. And then finally, workers go on a strike. This gentleman is asked to go on leave, and a new person who had worked in an electric loom was introduced or was appointed. So he started guiding the workers, and the strike was over, problem was solved, and the first supervisor was called back, but he was posted in a different section. So इसमें solution भी बता दिया. This is an historical case. Now, अगर आपके केस में issue is still there, so it becomes a problem or issue-based case. You end the case with that. Okay. But you have to give the complete background. Complete background के बाद भाई बताएंगे भैया ये issue है. वैसे इसी तरह से there is one case, taking over dad's business. Taking over dad's business is title of the case. जो succession पे basically. उसमें there was a gentleman by the name Ajit. He was very proud of his company, which was 50 years old ice plant.
So he had a monopoly. There in that area, there were not many other companies. But then what was happening? He was not adhering to the principles of management, and he would go to any section, anytime, and start giving orders. Even there was no leave policy, there was no HR policy, there was no clear-cut policy in the organization. So it was on the whims of that things would happen. See, one day he was the managing director of the company. One day he died. See how he died. He died while helping the workers to load the ice in the truck. अब मैनेजिंग डायरेक्टर है तो उसको आइस लोड करने की क्या जरूरत है? But he used to do these things. With this, he should have spent more time on planning how to go further, how to expand the business and so on. That he was not doing. So he dies. Then he had a son who was working in an advertising company in Bombay. So he came, and after his all rights, etc., once he comes, visits the factory, he is shocked that workers were sitting. He asked them, why you are sitting? He said, no, we don't know. Ajit used to come early morning and give us orders and tell us who will do what. In other words, there was no laid down system. Then when he checked accounts, he found that there was a lot of debt and accounts were not kept properly. When he found that who is the accountant, he found that there is no accountant, there is no account section. One of the friends of Ajit, his father's friend, used to come once in a while. He was a chartered accountant, and he used to say how to keep the accounts. With the result, things were in shambles. So Bridge, the son, at the end, revolves his chair towards the window, and from the window was opening on a garden. So he looked at the garden and started wondering, what should I do? Should I go back to Bombay or take the father's business forward? But if I have to take the father's business forward, everything is in shambles. So case ends here. This is a typical example of a problem or issue-based case. Issue वही है. अब क्या करे? What should Bridge do? Issue वहाँ पर है. Problem वहाँ पर है. This is an issue or problem-based case. कई बार हम टाइटल को अगर नहीं सूझ रहा है, वैसे बेटर ये है कि भैया कंटेंट्स ऑफ द केस के आधार पे आप टाइटल इंडिकेट टाइटल दो. अगर आपको नहीं जम पा रहा है तो यू कैन गिव द नेम ऑफ द कंपनी, एंड इफ नेम ऑफ द कंपनी हैज बीन डिस्गाइज्ड तो वो डिस्गाइज नेम बताएंगे. जैसे देयर इज अ केस पूरब पश्चिम बैंक, वो एक्चुअली वो केस दैट केस इज बेस्ड ऑन अ कंसल्टेंसी असाइनमेंट डन फॉर वन ऑफ द नेशनलाइज्ड बैंक्स इन द कंट्री. बट देन उस नेशनलाइज्ड बैंक का एक्चुअल नाम नहीं दे रहे हैं, नाम दिया है उसको, डिस्गाइज नाम है पूरब पश्चिम बैंक, तो टाइटल भी पूरब पश्चिम बैंक की देती. या अभी मैंने बोला गोपाल कॉटन मिल्स, तो उस मिल का नाम था गोपाल कॉटन मिल्स, तो गोपाल कॉटन मिल्स ही दे दी. So there are many, there you will find many cases on strategic management in the name of the company. For example, Reliance Industries के नाम से बहुत मिलेंगी, JK Corp के नाम से मिलेंगी, L&T के नाम से मिलेंगी. So there are many, HCL के नाम से मिलेगी, HP से मिलेंगी. So most of those are success stories which are in the strategic management area. So strategic, जब success story आप highlight करते हैं तो company may not hesitate in allowing you to give the actual name. बट जब इश्यूज हाईलाइट करते हैं तो तब वहां कई बार जो है रिलक्टेंट होती है कंपनी, या जिसके साथ आप इंटरेक्ट करते हैं उसकी अथॉरिटी नहीं है कि वो आपको परमिशन दे राइटिंग में. देयरफॉर वी हैव टू डिस्गाइज द केस. तो डिस्गाइज्ड केस में भी यू मे गिव, जो भी टाइटल आपने दिया है कंपनी को, नाम दिया है, तो उस नाम से भी आप टाइटल दे सकते हैं. तो दिस अबाउट द नेम, एंड मोटी मोटी बातें यही है. अब आपको कुछ पूछना है तो पूछो, अपने एक पर्टिकुलर केसेस से रिलेटेड कुछ पूछना तो पूछो. तो वहाँ पे सर मेरा क्वेश्चन है, वहाँ जो प्रॉब्लम है वो हायरिंग का प्रॉब्लम है कि उनको जो स्किल्ड वर्कर नहीं मिल पा रहा है, और अगर स्किल्ड वर्कर मिलता है तो ऑफर शॉपिंग कर रहा है कि वो अपना ऑफर ले जाके किसी और कंपनी से ज्यादा पैकेज ले आते हैं. फिर इन जो मेरी कंपनी थी एक्सियन टेक्नोलॉजीज, उसमें बताते हैं कि मुझे इतना ऑफर मिल गया, मुझे आप और क्या ऑफर कर सकते हैं. तो इस वजह से उनको अच्छे स्किल्ड वर्कर नहीं मिल पा रहे हैं. तो ये प्रॉब्लम क्या टैलेंट एक्विजिशन से रिलेटेड है कि टैलेंट मैनेजमेंट से है कि हायरिंग रिक्रूटमेंट, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन. नहीं, वेदर टैलेंट से मैनेजमेंट से रिलेटेड है या रिटेंशन से रिलेटेड है
वो आपको पूरा बॉडी में पूरी डिटेल इस केस की, इस जो कुछ भी उन्होंने किया है, कंपनी ने किया है, all those details are to be given and leave it to the case discussants to discuss कि भैया वो talent की, वो they are not able to identify talent or they are not able to retain the talent because their compensation is not at par with the market rate. ये सारी डिटेल जो कुछ भी वो उन्होंने कंपनी ने दी है वो सब बॉडी में आनी चाहिए एंड देन लीव इट टू द केस डिस्कशंस टू डिसाइड कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। अगर मैं उसकी जगह होता, उस कंपनी में मैनेजर की जगह होता या एमडी की जगह होता या जो भी whosoever is in the helm of affairs, तो मैं क्या करता? So that will happen in the case discussion. Okay, sir. Is there any other question related to your specific cases? Yes, sir. Good afternoon, sir. Sir, actually, I want to know exact format of the case study writing, sir. Exact format, because Format तो यही है, there papers should के be 3 parts. पहला तो बैकग्राउंड पार्ट हो गया, यानी कि यू गिव द बैकग्राउंड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर कोई मेन व्यक्ति जो उसमें है, हीरो जिसको हम बोलते हैं, उसका बैकग्राउंड देंगे तो बैकग्राउंड में आएगा। सो फर्स्ट पार्ट इज बैकग्राउंड पार्ट, या जिसको आप इंट्रोडक्शन बोल सकते हो। सेकंड पार्ट इज बॉडी, जिसमें आप सारे इवेंट्स एंड सीरीज ऑफ इवेंट्स बताओगे, जो कुछ भी प्रॉब्लम है उसको कैसे हैंडल किया, क्या क्या उन्होंने किया, वो सब बॉडी में आएगा। एंड थर्ड पार्ट इज द टेल पार्ट और कंक्लूडिंग पार्ट, जिसमें आप समअप करोगे एंड उसको आपने कैसे क्लोज किया उस पे उससे डिसाइड होगा कि ये इशू बेस्ड केस है या हिस्टोरिकल केस। तो फॉर्मेट में यही 3 चीजें पार्ट, हर केस में ये 3 पार्ट्स होने चाहिए, फॉलोड बाय 3 to 5 क्वेश्चन। वर्ड लिमिट क्या होगी? मैक्सिमम वर्ड लिमिट या मिनिमम कोई लिमिट नहीं है, ऐसे भी केसेस है जो पूरी किताब है। जैसे फॉर एग्जांपल देयर इज अ फुल फ्लेज्ड केस ऑन सेल, वन फुल बुक पब्लिश्ड बुक है, कवर टू कवर 300 पेजेस, तो लिमिट नहीं है। बट नॉर्मली जो इस तरह के वर्कशॉप जो हमने किए हैं पिछले 25 सालों में, इसमें मोस्टली जो लेंथ रहती है केसेस की वो 6 से 10 पेज तक हो जाती है, 6 to 10 पेजेस। एंड देन यू शुड नॉट अटैच अननेसेसरी टेबल, जिनका कोई मेंशन ही नहीं है टेक्स्ट पे, उनको अटैच नहीं करना चाहिए। अटैच ओनली व्हाट इज रेलेवेंट टू द टेक्स्ट ऑफ द केस दैट यू हैव रिटन। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है रेफरेंसेस को कैसे शो ऑफ करें? रेफरेंसेस आपका टीचिंग नोट में आएंगे, जो आपके स्टैंडर्ड इंटरनेशनल रेफरेंसेस है तो वही देनी चाहिए। जो अगर कोई अफ्रीका, बिकॉज वंस इट इज रजिस्टर्ड विद केस क्लियरिंग हाउस, केस विल बी ओपन एंड अवेलेबल फॉर यूज एनीवेयर इन द वर्ल्ड। सो अगर कोई नाइजीरिया में बैठा है और आप कोई ऐसा रेफरेंस लिखते हो तो जिसको वो मिलेगी नहीं। फॉर एग्जाम्पल आपने बोला ऑथर का नाम है ताराचंद और पब्लिश हो गई है, कोई अननोन पब्लिशर है इन इंदौर, तो उसको कभी मिलेगा ही नहीं वो अननोन पब्लिशर। सो पब्लिशर जो इंटरनेशनल पब्लिशर है, नॉन बड़े बड़े पब्लिशर है, उन्हीं का नाम आना चाहिए। 1 मिनट होल्ड। ओके, चलिए पूछे हो। सर, नेक्स्ट लैंग्वेज वी कैन यूज पास्ट, प्रेजेंट और वी कैन यूज ओनली तो पहले दिन भी मैंने बोला यूज प्रेफरेबली पास्ट टेंस। जो फैक्चुअल बात हो ना वो प्रेजेंट में भी लिखी जाए तो डजंट मैटर, लेकिन जो एक्चुअली पूरी सीरीज ऑफ बेसिकली केस क्या है, केस तो कुछ होने के बाद ही लिखते हो ना। जब कुछ होने के बाद लिखेंगे तो प्रेजेंट टेंस कैसे आएगा? हैज टू बी पास्ट टेंस। उससे केस की लाइफ भी बढ़ती है। अगर आप प्रेजेंट टेंस में पूरा लिखोगे 1 साल में वो ऑब्सोलीट हो जाएगा, लेकिन पास्ट टेंस में लिखोगे तो 20 साल का केस भी आज हम यूज कर सकते हैं। सो यूज पास्ट टेंस। और मैटर ऑफ फैक्ट वाला में जहाँ पे फैक्चुअल है, वो जैसे एज है किसी की उस टाइम, वो लिख सकते हो प्रेजेंट में, बट इन टोटलिटी केस हैज टू बी इन पास्ट टेंस। थैंक यू। यूज सिंपल सेंटेंसेस, अवॉइड कंपाउंड सेंटेंसेस। कंपाउंड सेंटेंसेस यूज मत करो, सिंपल लैंग्वेज, सिंपल सेंटेंसेस यूज करो। चलिए नेक्स्ट। Sir, I have one question. Do we need to add questions for each part of the case, or overall we need to add 3 to 5 पार्ट questions? से कोई संबंध नहीं, मेन Okay. तो ये तो मैंने एक बताया कि पार्ट्स को अच्छा। हम डिवाइड करें सो दैट कवरेज बेटर हो। Okay, sir. लेकिन जो पूरा केस है उसके आधार पे आपको क्वेश्चन पूछना है। Okay, sir. Thank you, sir. चलिए, एनी अदर क्वेश्चन?
Then further, to break the monotony and increase the concentration of the reader, you should have subheadings. बीच बीच में सबहेडिंग्स दे दीजिए. सबहेडिंग का मतलब ये नहीं कि हर पैराग्राफ का आप हेडिंग दो. सबहेडिंग से मतलब है रीजनेबली से 2 पेजेस के बाद you may 2 pages के बाद you may give a subheading, and then उस subheading should be based on what is there in the contents. तो सबहेडिंग देने का पर्पस होता है मोनोटनी ब्रेक करना और रीडर का अटेंशन ड्रॉ करना. तो सबहेडिंग्स देनी चाहिए. चलिए पूछे और क्या है. हेलो सर. पूछे सर, ये हमारा जो केस था वो एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर था, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर. सो चाचा चटोरो के ऊपर है, तो हम केस का हेडिंग चाचा चटोरो लिख के हम कर सकते हैं? गलत है, क्योंकि केस में हमको एडजेक्टिव्स अवॉइड करने चाहिए. वी शुड नॉट यूज एडजेक्टिव्स. गुड, बैड, सक्सेसफुल वो यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि यू शुड लीव इट टू द केस डिस्कशंस. वो बताए सक्सेसफुल था या फेलियर था, बट यू शुड यूज द मैटर ऑफ फैक्ट लैंग्वेज. जो एक्चुअली हुआ है वो बताओ. अब वो सक्सेस थी या फेलियर थी वो तो केस डिस्कशन बोलेगा. दैट केस डिस्कशन विल टेल यू. नहीं सर, मतलब आप टाइटल में सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर जैसे आपने जरूरत नहीं बोलने की. आप तो भले एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड है, मैटर ऑफ फैक्ट लैंग्वेज यूज करके इंडिकेटिव टाइटल दे दो. सक्सेसफुल जरूरत नहीं बोलने की. नहीं, जैसे मेरा क्या मतलब सिर्फ चाचा चटोरे करके हम टाइटल दे सकते हैं? क्या देके? टाइटल चाचा चटोरे. नहीं, ऐसा टाइटल भी दो जो अफ्रीका में, नाइजीरिया में व्यक्ति को समझ में आए. Excuse me, sir. Sir, can we write it as a journey of an entrepreneur, whether it is successful? लेकिन जर्नी ऑफ एन एंटरप्रेन्योर बोलोगे ना तो बहुत ही वाइड हो गया, बहुत ही Okay. वेग हो गया. भाई Okay. जर्नी कैसी थी हाँ. उसके आधार पे टाइटल दो. Okay. Done, sir. जी सर. ओके सर. दूसरा क्या है, जैसे मान लो हमारा जो एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर है, तो उसमें जैसे बॉडी बैकग्राउंड और जो कंक्लूजन है वो थोड़ा सा पार्ट ऐसा हो रहा है, क्योंकि हिस्ट्री एक तरह से हिस्ट्री बेस्ड बन रहा है हमारा केस. हाँ तो कोई बात नहीं, हिस्टोरिकल केस हो सकता है ना. ओके Sir, we have just written some text. Can we show it over here? नहीं, बताएं क्या लिखा है वैसे बताओ. Pavan sir. आप Explain सभी का please. पूरा केस रीडिंग होगा लास्ट डे. Okay. Okay. Each group will be presenting the case, reading out the case. PPT Okay. मतलब point wise नहीं चाहिए. PPT पूरा complete text चाहिए, which one of the members of each group will be reading out. फिर हम आपको कुछ suggestions दे देंगे. तो इसलिए अभी केस वो रीडिंग नहीं करेंगे, बट आप स्पेसिफिक मेरे को क्वेश्चन पूछो. Okay, sir. Okay. ओके सर. ओके स्पेसिफिक क्वेश्चन आप पूछो केस के बारे में जो आप Sir, स्पेसिफिकली लिखा है. Sir, there are different years ki in that year he had done this, in that year he had done this, and how he faced the challenges and he came up with the challenges and started his own startup. So can we write it with the particular year wise, that in year हाँ, लिख सकते 2015? हैं. वो तो है ही. इसी केस का डेफिनेशन ही है. इट्स अ Okay. क्रोनोलॉजिकल नरेशन. क्रोनोलॉजिकल का मतलब ही है सीक्वेंस में, Okay. ईयर वाइज. ठीक. Okay, sir. Thank you, sir. सर, इसमें जैसे इसी केस में जैसे लास्ट में जो क्वेश्चंस बनेंगे, केस के एंड में जो क्वेश्चंस डालेंगे, तो उसमें हम किस तरह से क्वेश्चन डाल सकते हैं हिस्टोरिकल बेस्ड केस? क्वेश्चन आप ऐसे डालोगे जो केस से रिलेटेड हो. सो फॉर एग्जांपल आपने जैसे इस तरह का केस डाल सकते हो, जैसे एंटरप्रेन्योरशिप पे है, नाम उसको दे दिया मनीष कुमार. वाज मनीष कुमार ए सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर? तो वो केस डिस्कशन डिसाइड करेगा और वो बताएगा कि वो सक्सेसफुल था या फेलियर था. ओके सर. फिर ये बोलोगे भाई अब had you been in Manish Kumar's position, what would you have done to tackle the problem faced by him? ओके सर. ओके So सुन that we also direct indirect questions पूछ सकते हैं. ठीक है सर. But 3 से 5 के between 3 and 5, not more than that. ओके सर. चलिए, और किसी को और भी क्वेश्चन है? कोई भी क्वेश्चन है? टीचिंग नोट भी आप लिख लिए, और टेक्स्ट में जैसे मैंने बोला सब हेडिंग्स दे दीजिए, और ब्रॉडली 3 पार्ट्स होने चाहिए इसी ऑर्डर में, बैकग्राउंड, बॉडी एंड टेल. एंड ऑथर्स का भी मैंने आपको बताया, टाइटल का भी मैंने बताया, इंडिकेटिव हो. और अगर समझ में नहीं आ रहा तो जो भी नाम आपने ऑर्गेनाइजेशन का रखा है वो नाम भी दे सकते हो.
whatever name is given to the organization, मान लो disguise किया है तो वो नाम दे सकते हो। तो ठीक है, तो आप लोग लिखो, यू स्टार्ट फर्दर वर्किंग ऑन द ड्राफ्ट, उसको कंप्लीट करिए, एंड देन टुमारो वी विल डिस्कस वन ऑफ द, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा एक केस which has been developed, already developed and published. That was developed and written during similar workshop. तो वो केस आप लोग once you will go through that case, तो आपको एक फर्दर आइडिया हो जाएगा कि कैसे लिखना है, और उसके बेसिस पे इवन आपस में वो डिस्कस कर, उस केस को आप लोग डिस्कस भी कर सकते हो। एंड लास्ट डे फिफ्थ डे ये कि सिक्स्थ डे? फिफ्थ डे। तो फिफ्थ डे आप ईच ग्रुप विल रीड आउट द केस फ्रॉम कवर टू कवर। दैट मीन्स जो आप पीपीटी बनाएंगे वो पॉइंट वाइज नहीं चाहिए, वो चाहिए कंप्लीट ड्राफ्ट ऑफ द केस, कंप्लीट ड्राफ्ट ऑफ द टीचिंग नोट विच यू विल बी रीडिंग आउट, एंड देन आई विल गिव यू सजेशंस अगर उसमें कोई भी एडिशन ऑल्टरेशन करने की जरूरत। So that will happen last day. But tomorrow you will have to do, we will be sharing a case जो कि इसी तरह के वर्कशॉप में डेवलप किया है, we will share it with you. उसको आप सभी पढ़ लीजिए अच्छी तरह से, that will give you an idea, exact more idea about how to write, and then उसको आपस में डिस्कस भी कर सकते हैं, we will discuss also that case. So one question. ठीक है? So there is सर, one अगर question कोई coming केस up. पढ़ना होगा तो Any question you can ask. Abhishek. Yes, sir. Sir, in our case, ours is a company, Emerald Agencies, and the owner himself is performing all the operations. So actually, he is telling that he has done very much efforts for maintaining the survival of the company, like authenticity is maintaining and moral values is maintaining, and basically it is a business framework analysis case. So how can we give direction to it? नहीं, डायरेक्शन तो कुछ नहीं दिया, जो उन्होंने आपके साथ शेयर किया है उसके बेसिस पे ही लिखोगे आप। Sir, तो based on what he has shared with you. Sir, basically he shared what challenges he is facing. So what type of उन्होंने case? कहा कि challenges फेस किए हैं, then उन्होंने कैसे उनको फेस किया, कैसे हैंडल किया, वो सब आप बॉडी में दे सकते हो। Sir, basically he is not satisfied with the government promotional वो लिख लो efforts. उसमें, वो लिख लो that such and such person and he was not satisfied with the procedures followed by the government and so on, जो भी उन्होंने कहा है that you can include. Okay. So will it be केस डिस्गाइज में आप कर सकते हो, उसमें लिए आपको फिर उसकी परमिशन भी नहीं चाहिए। But we should not give imaginative contents. Content should be factual, based on the interaction with the company representative. So sir, it will be business environment analysis case or something else. वो डिपेंड करता है कंप्लीट कंटेंट्स क्या है, कंप्लीट कंटेंट्स के आधार पे वी कैन मेक आउट ये किस एरिया में जा सकता है। Okay, sir. Thank you. so again, sir? It will be an issue-based case. कौन सा वाला? This pharma dealer. हाँ, तो if you are ending with the issue, तो then it is issue based case. But if you are ending with the solution, then it is historical case. तो डिपेंड करता है आप टेल पीस में कैसे उसको सम अप करते हो। Sir, he ended his conversation with opening remarks for the issue. Like he is facing right now this issue, the business If environment. he's still a in which basic is- or he doesn't have much to talk about how he can handle it, Yes. then it becomes an issue based case. Okay. Okay, sir. तो ठीक है, तो अब आप इस तरह से लिखिए, कंटिन्यू करिए, because we have to finish. More than half of the case workshop is over. That means out of 5 days, 3 days are almost over. अभी भी टाइम है आपके पास, इसको जो भी रह गया वो पूरा करिए, टीचिंग नोट भी पूरा करिए, और ये जिसमें मेन टेक्स्ट में जो कुछ भी रहा है वो पूरा करिए। उसके बाद में हम कल आपको शेयर करेंगे एक केस जो कि इसी तरह के वर्कशॉप में डेवलप किया। दैट विल गिव यू फर्दर आइडिया, सो दैट आपको अगर कहीं पे भी डिविएशन है वो करेक्शन कर सकते हो। और परसों आप पूरा केस, हर ग्रुप पूरा केस पढ़ के सुनाएगा, पढ़ के बताएगा, और उसमें जो कुछ भी किसी की भी सजेशंस हो वो सजेशंस इनकॉर्पोरेट की जा सके, सो दैट बाय द एंड ऑफ द वर्कशॉप यू आर रेडी विद द केसेस। Okay, sir. Okay, so you continue, और कल मैं देखता हूँ, I may come in the afternoon, but in the meantime
आप लोग ये केस जितना भी रह गया वो पूरा करिए, और दूसरा जो हम शेयर करेंगे वो आप सभी लोग पढ़ना पूरा, और वो आपको क्लियरिटी देगा हाउ टू राइटिंग स्टाइल क्या होना चाहिए, एंड देन यू कैन आल्सो डिस्कस दैट केस अमंगस्ट योरसेल्व्स. ओके, चलिए सर. ठीक है. I may Thank meet you tomorrow afternoon. In the meantime, you finish the work that you are already doing. Sure. Okay. Sure. You Thank you continue. very Now you can go back to your individual groups and work on your individual cases. Sure. Thank you Okay. very Okay, much. sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Group विकास three. सर कुछ कहना चाहते हैं आप? Sir, I just wanted to say we will start our meeting at 3 p.m. Group 3. ठीक है. Just after. बाकी rest of the participants are hereby requested to please access to your WhatsApp, because all the information will be formally through WhatsApp. Excuse me, Manish sir. Yes, ma'am. Sir, your presentation will be in PPT format, or we can just share the Word document screen also. Word document. Whole document, right? Whole document. Yes, yes. Share the We- screen. We expect you to share the complete case. Complete case. Whatever you have prepared, including the teaching note. That we don't have to make on PowerPoint presentation. We No have to show PowerPoint the. pre- Okay. No okay, done. PowerPoint presentation. Okay. MS She's Word only. asking. Yes. So, Okay, sir. Thank you. मनीष सर, पवन जी, मेरा एक रिक्वेस्ट है, कोई केस आपके पास है हिस्ट्री बेस्ड, बस। थोड़ा कोई अरे बेस्ड? अभी ऑनरेबल वीसी सर ने यही तो बोला, कल सुबह एक केस दे रहे हैं हम आपको. नहीं ठीक है, कल नहीं, अभी कोई मिल जाता तो थोड़ा पढ़ने को मिल जाता. हाँ, दे देते. आप भेज पर, दीजिए सिर्फ. पर सर कुछ देना चाहते हैं वो कल देख लेंगे ना सर. सर का भी देख लेंगे और आपका भी देख लेंगे. एक्चुअली क्या हमारे साथ दिक्कत है कि हमने लिख तो दिया है, लेकिन जिस तरह से केस राइटिंग सर बता रहे हैं वो थोड़ा ऐसा लग रहा है. कल वो वाला केस देखेंगे आप तो शेप में आ जाएगा सर. आप बिल्कुल अपना कॉन्फिडेंस लूज मत कीजिए, आपने बढ़िया किया है. पवन सर, मनीष सर सीधे सीधे बोल रहे हैं कि मैं नहीं दे रहा हूँ, आप लोग जो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं. बिल्कुल. आपका प्रश्न हेडिंग पे भी था चटोरे का, तो वो उन्होंने बोल दिया कि आपको ऐसा. हाँ सर, एक्चुअली बस वही थोड़ा सा इशू हो रहा था कि सर एक्चुअली है ना, हेडिंग वही रहेगा, क्योंकि वो चाचा चटोरे कोई नाम नहीं, कंपनी है पूरी तरह से वो. नहीं, पर वो हाँ, हम उसको थोड़ा सा चेंज. भाई चाचा वर्ड तो हिंदुस्तान में ही चलता है ना सर. इंटरनेशनल लेवल पे कंपनी का नाम ही, जैसे इंदौर टॉक है. अब इंदौर टॉक तो इंदौर में चलेगा ना सर. इंदौर टॉक इज अ बेटर वन. नहीं ठीक है, लेकिन देखते हैं, इंदौर टॉक करते हैं. देख इंदौर टॉक करते We हैं. will change sir. Okay. Thank you sir. Thank you. रचना मैडम, मैं वो गूगल मीट खोलूं? Yes, पवन सर उसी पर मिलते हैं. Done.